Hello and welcome to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy. Before starting the orientation class on Indian geography, let me first of all tell you something about the Kashmir Civil Services Academy. Kashmir Civil Service Academy is an offline institute which offers coaching for various competitive exams conducted by JKSSB, JKPSC, SSC and UPSC. Now, this is an online initiative in which we are helping the students in a better way. In this regard, we have started lecture series on different subjects by the expert faculties. They will be delivering the lectures so that the students will benefit from these lectures and crack down these competitive examinations. What you will get in these lecture series is you will get classes on daily basis. Not only daily classes, you will be able to communicate with our educators and ask doubts. In addition to this, you will be able to attempt to the polls that will be provided to you in these lecture series. This lecture series will be structured in the sense that it will be in accordance with the syllabus provided by JKSSB and JKPSC for the said examinations. In addition to this, you will be able to attempt the mock test which will be available to you on our web portal www.kcsa.in. In addition to this, you will be mentored by former and current KS officers which are serving in different departments in their respective districts. About our offline institute, it is situated at KP Road, Anantnag, near Pandit Uniform House. You can reach out to us on WhatsApp on this number. You can also contact us on our Instagram channel, our Facebook channel, our Telegram channel and Twitter account. You can also reach to us on email, that is kashmircivilservicesacademy@gmail.com. Now something about me. My name is Saqib Mushtaq and I have plus 2 years of teaching experience in Indian geography and world geography. And I have graduated from the Engineering College of Jammu. Now about Indian geography. This lecture series is such designed that it will be in accordance with the syllabus that is provided by JKSSB for Panchayat Secretary, which is also called Village Level Worker, Inspector Finance, Social Worker and Medical Supervisor. Not only this lecture series will be sufficient for other posts having the similar syllabus, as the coverage of the syllabus will be very comprehensive. Now about the lecture series. This lecture series will be completed in about 10 to 12 lectures. The first lecture will be of political and the physiological divisions of India. It will be covered in two parts. First part will be of the political division of India and the second part will be of the physiological division of India. The second lecture will be about the climate of India and the crops of India. In the third lecture, we will be discussing about the transport and communication systems that are prevailing in India. We will discuss about the land transport, the water transport and the air transport. In the communication system, we will be discussing about the postal services prevailing in India and the telegraph services that are available in India. In the fourth lecture, we will be discussing about the drainage system and the lakes of India. The last lecture will be the highlight of this lecture series. In this lecture, we will discuss about the demography, census, its features and vital statistics of India. Now, how to get ultimate benefit out of this lecture series? You have to make notes out of the PPT slides that will be provided to you in this lecture series. In addition to this, you have to revise the same topic on the same day the lecture will be delivered to you, and you have to attempt the mock test that will be available to you on our web portal www.kcsa.in.
in. सबसे पहली बात, क्या मतलब होता है जियोग्राफी का? जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड ग्राफी स्टैंड्स फॉर स्टडी. दैट मीन्स इन जियोग्राफी वी स्टडी अबाउट अर्थ. अर्थ की अलग अलग चीजें हैं, इसके लिए अलग अलग डायमेंशन है, उनकी स्टडी करना, अर्थ के क्रस्ट को पढ़ना, मेंटल को पढ़ना एंड कोर को पढ़ना. अर्थ के अंदर देख लिया हमने, इसके बाहर क्या चल रहा है वो हम देखते हैं. ओशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं जिनकी वजह से वोल्केनिज्म पैदा होता है, अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ना. अगर हम देखें, हमने जियोग्राफी को दो हिस्सों में बांटा है. वन इज फिजिकल जियोग्राफी एंड अनदर इज ह्यूमन जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं और जियोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम देखेंगे, हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज एटसेट्रा. इन एडिशन टू दिस, हम रिवर्स की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं लाइक डेल्टाज, उनके बारे में पढ़ते हैं. अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ते हैं लाइक पोलर विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में. हाइड्रोस्फीयर में हम और भी डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम देखें, ह्यूमन जियोग्राफी में हम हैबिटेशन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम देखें, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स. जियोग्राफर्स दो चीजों के बारे में मेन फोकस करते हैं. फर्स्ट थिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड अक्रॉस इट. अगर हम देखें, the first recorded use of word geography was by Eratosthenes, who has been credited with creating the discipline of geography. Eratosthenes ही वो है जिसने जियोग्राफी का डिसिप्लिन क्रिएट किया है, और दैट इज वाई एरिस्टोथेनस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है. अगर हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें, तो इंडियन जियोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो जेम्स रेनल है. जेम्स रेनल ही वो इंसान है जिसको फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन ओशनोग्राफी. दैट इज वाई जेम्स रेनल को ही फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी कहा जाता है. जेम्स रेनल वो सेम पर्सन है जिसने इंडियन मैप डिवाइस किया है. ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल जियोग्राफी के नेट एग्जाम में भी ये बात पूछी गई थी. जेम्स रेनल वो पर्सनैलिटी है जिसने इंडियन मैप डिवाइस किया है. अर्थ पे अगर हमें किसी भी पॉइंट या प्लेस की लोकेशन पिन पॉइंट करनी रहेगी या आइडेंटिफाई करनी रहेगी, या अगर मैं कहूं अर्थ पे
इंडिया कहां पर है, तो मैं बोलूंगा इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में, या इस लॉन्गिट्यूड या इस लॉन्गिट्यूड के बीच में। तो किसी भी प्लेस की अगर हमें लोकेशन बतानी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। ये दोनों इमेजिनरी लाइंस होती है जिसमें हमने अर्थ को डिवाइड किया है किसी भी प्लेस की लोकेशन जानने के लिए। तो देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। अगर हम देखेंगे, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। यहां पे हम इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर हम देखेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करना है अर्थ पे, फॉर एग्जांपल दिस प्लेस को, तो हम ये बाय मीन्स ऑफ लैटिट्यूड करेंगे। अगर हम ये ज्वाइन करेंगे और देखेंगे यहां पे एंगल बनेगा फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, तो इस प्लेस का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो होगा, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन में, इस प्लेस की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आएगी 20 डिग्री नॉर्थ। इन द सेम वे अगर हम यहां पे कोई लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे और हम देखेंगे इक्वेटर से उसका सेम एंगल या 30 डिग्री बनता है, तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा 30 डिग्री साउथ। दैट मीन्स के लैटिट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इक्वेटर होता है। अगर हम देखें, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मतलब ये वाला लैटिट्यूड, ये वाला विद द कॉमन सेंटर, और इनका कॉमन सेंटर सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो लैटिट्यूड हो या पैरेलल हो, सेम बात है। अर्थ का जो ग्लोब है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अगर हम देखेंगे, अर्थ को जो लैटिट्यूड बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसको हमने बोला है इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने डिफरेंट लैटिट्यूड्स को अलग अलग नाम दिया है। अगर हम देखेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इन द सेम वे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल से डिनोट किया गया है। इन द सेम वे 66.5 डिग्री साउथ को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ये जो फ्रिजिड जोन है ये सराउंड करते हैं दोनों पोल्स को, साउथ पोल भी और नॉर्थ पोल भी। क्या आप देख के बता सकते हैं कि अर्थ का सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन होगा? डेफिनेटली वो होगा जो सेंटर में से पास करता है, दैट इज इक्वेटर। दैट इज वाई इक्वेटर को लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहते हैं। अगर हम देखें कि ये जो इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो बीच वाला एरिया होता है वो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं।
और जो ट्रॉपिकल जोन होता है ये हीट सरप्लस रीजन होता है। क्यों होता है ये हीट सरप्लस रीजन? क्योंकि इस पर जो सनरेज आती है वो डायरेक्टली फॉल करती है, जिसकी वजह से कम एरिया में ज्यादा हीट आ जाती है और ये वाला हीट एरिया हीट अप हो जाता है। दैट इज वाई कि ट्रॉपिकल एरिया को हीट सरप्लस रीजन कहा जाता है। अगर हम देखेंगे आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया जो ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, इन द सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया है, इन दो एरियाज को हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और जो आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच में एरिया इसको पोलर जोन बोलते हैं। सेम वे एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है वो भी पोलर जोन बोलते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो टेम्परेट जोन और पोलर जोन होते हैं ये हीट डेफिसिट होते हैं। क्यों हीट डेफिसिट होते हैं? क्योंकि इन पर जो सन रेज फॉल करती है वो स्लांटिंग होती है। स्लांटिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, इनकी हीट डिस्पर्स हो जाती है और दैट इज वाई ये वाले एरियाज हीट डेफिसिट रीजन्स कहलाते हैं। तो ये सब चीजें हम हीट बजट में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एल्बिडो। किस चीज का एल्बिडो ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये भी हम आगे के वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नाउ हमने क्या पढ़ा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हुई। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन्स। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से विंड्स बनते हैं। हमको पता है विंड्स मूव करते हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो चूंकि ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुई, इसकी वजह से राइज होता है विंड्स का। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। जिस तरीके से हम अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते थे लैटिट्यूड्स में, इसी तरीके से हम अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड्स में। अगर हम पता करें कि व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। यहां पे हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को नाम दिया है प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है, जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है। दैट इज वाई इसको GMT भी बोला जाता है। अगर हम देखेंगे इसके राइट अपोजिट में जो लाइन पास होती है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इसको हम क्यों बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? क्योंकि अगर हम इस लाइन को पार करेंगे तो अलग डेट हमको मिलती है। इसके इस साइड में एक डेट होती है और अदर साइड में अलग डेट होती है। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स इंडिविजुअली पढ़े थे और लॉन्गिट्यूड्स इंडिविजुअली पढ़े। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो एक ग्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम अर्थ's ग्रिड बोलते हैं। तो आप किसी भी जगह की
लोकेशन आप पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इस पॉइंट के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता करने हैं तो हमको पता है कि ये वाला पॉइंट दो लाइन से पास करता है। एक तो ये वाली लाइन है, पहले हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, और ये पास करता है 30 डिग्री ईस्ट से। तो ये इस प्लेस की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ। इन द सेम वे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इस प्लेस के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है। आप नोट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखते हैं। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। अगर हम मैप पे नजर डालें, जो ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर हम ये देखेंगे ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगी तो ये वाली जो कंट्री है इसके इस साइड में एक डेट होगा और इस साइड में दूसरा डेट होगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई हमने इसको अपनी कन्वीनियंस से एक कंट्री से निकालकर ऐसे फिर से लाया है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। वी नीड टू नो दैट देयर आर टू मोशंस ऑफ अर्थ। वन इज रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस and second is revolution around the sun। ये जो अर्थ रोटेट करती है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम देखें अर्थ वन कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। दैट मीन्स अगर हम देखिए वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होती है, तो 360 डिग्री अर्थ 24 आवर्स में कवर करती है। तो एक आवर में अर्थ 360 डिवाइडेड बाय 24 डिग्रीज रोटेट करेगी। वो कितना होता है? वो 15 डिग्रीज होता है। दैट मीन्स कि एक आवर में अर्थ 15 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमको पता करना होगा कि एक डिग्री कितने टाइम में होता है, तो वो होगा 60, क्योंकि एक आवर 60 मिनट्स का होता है, डिवाइडेड बाय 15, उसको आएगा 4 मिनट्स। ये दो जो रिजल्ट है इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ 12 नून एट GMT, व्हाट इज द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट? तो क्वेश्चन इस तरीके का है, हमको पता है GMT सेंटर ऑफ द अर्थ में से पास करता है, दैट इज GMT इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर GMT पे 12 बजे हैं तो 75 डिग्री ईस्ट में, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वहां पे कितने बजे होंगे? क्योंकि हमको पता है कि अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है। दैट मीन्स कि सन जो राइज होता है वो राइज होता है ईस्ट में। तो अगर सन सबसे पहले राइज ईस्ट में होगा तो ईस्ट का टाइम जो होगा वो आगे होगा वेस्ट के टाइम से। दैट मीन्स 75 डिग्री ईस्ट में 12 से ज्यादा टाइम होगा। अब वो कितना ज्यादा होगा? हमने चूंकि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा
कि अर्थ 1 आवर में 15 डिग्रीज रोटेट करती है, तो 75 डिग्रीज कितने टाइम में रोटेट करेगी, विच विल बी इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 15, 5, दैट मीन्स के 5 आवर्स लगेंगे। तो अगर जीएमटी पे 12 बजे है तो 75 डिग्री ईस्ट पे कितने बजे होंगे, इससे 5 घंटे ज्यादा। तो अगर वहां पे 12 बजे है तो 75 डिग्री ईस्ट पे 5 पीएम होगा। इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है, हर कोई कंट्री एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करती है कि हमको पता है कि अगर हम देखेंगे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे एक्चुअली में डिफरेंट टाइम आएगा, लेकिन कंट्री में डिस्टरबेंस अवॉइड करने के लिए कुछ कंट्रीज, आई मीन से कि मैक्सिमम कंट्रीज एक अपना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करती है। वो यूजुअली वो जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड उस कंट्री से पास करता है उसके अराउंड, उसके पास जो टाइम होता है वो यूजुअली वो वही डिसाइड करते हैं। तो अगर हम देखें इंडिया में जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट डिसाइड किया है। इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमको पता है अगर हम कैलकुलेट करेंगे जीएमटी, हमको पता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो इंडिया इस साइड में आएगा ईस्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट में। दैट मीन्स कि इंडिया का टाइम अहेड होगा, प्लस होगा। अब कितना होगा वो हमें कैसे निकलेगा, हमको पता है कि एक घंटे में अर्थ 15 डिग्रीज रोटेट करती है। तो अगर हमको ये पता करना होगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट तक कितना टाइम लगेगा, वो हम डिवाइड बाई 15 करेंगे। अगर हम ये कैलकुलेट करता, ये आता है 5.5 आवर्स। दैट मीन्स इंडियन टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई 5.5 आवर्स। तो यही बात है, अगर इंग्लैंड में अभी 12 बजे होंगे तो हमारे इंडिया में अभी शाम के 5:30 होंगे। This is how beautiful is this the calculations by means of longitude. तो अगर हम बात करेंगे टाइम जोन्स की, कुछ कंट्रीज है जिसमें एक से ज्यादा टाइम जोन्स है। अगर हम देखेंगे, चूंकि ये डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। अगर हम देखेंगे रशिया में चूंकि बहुत सारी कंट्रीज है तो रशिया में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, तो उसमें एक टाइम जोन रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि सेम कंट्री रशिया में 11 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, ये आप याद रखना। So students, this is it for today's lecture. We will meet in the first lecture of this lecture series in which we will be discussing about the political division of India. उसमें हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो stay tuned for the next lecture. Thank you and have a nice day.